Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study functioning of the state government, learning port, health, education, water management, land reforms. Private health facilities are much more expensive than public health facilities. In your opinion, how can healthcare be made more affordable for all? देखिए हेल्थ केयर किस तरीके से ज़्यादा अफोर्डेबल हो सकती है हर किसी के लिए. ओके, द कलेक्टिव वेल्थ ऑफ अ कंट्री इज टर्म्ड एज इट्स रिसोर्सेज विच कैन बी न्यूट्रल वेल्थ एंड ह्यूमन बींग्स. The primary functions of any government is make an assessment of the available resources, analyze and plan their effective use by the welfare of the citizens of the country. Just as there is a division of powers between the central and the state governments in India, there also exists a division of national and state resources. A crucial activity of state governance is therefore to engage the resource planning and resource allocation that would suit needs of the state people. ओके, देखिए कलेक्टिव वेल्थ, एक कंट्री की जो कलेक्टिव वेल्थ है उसको माना जाता है नेचुरल वेल्थ या फिर ह्यूमन बींग्स के लिए. ओके, प्राइमरी फंक्शन जो है किसी भी एक गवर्नमेंट का वो मेक असेसमेंट बनाता है अवेलेबल रिसोर्सेज से. ओके, और वो इफेक्टिव है कि नहीं ये चीज़ भी देखता है. डिवीजन होते हैं पावर्स के बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में इंडिया में. ओके, क्रूशियल एक्टिविटीज़ जो होती हैं स्टेट गवर्नमेंट की वो ये होती है कि एंगेज रखना रिसोर्सेज को, प्लानिंग करके अच्छे से किस तरीके से उन्हें एलोकेट कर सकते हैं, किस तरीके से वो सूट कर सकती हैं लोगों को. ओके, फैक्टर्स इन्वॉल्व इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सर्विसेज. द काउंसिल ऑफ Minister carry out a thorough study on the needs of the people and discuss all the related issues in the meetings. On the basis of the discussion, the proposal is given the shape of the bill which is placed in Vidhan Sabha to convert it into a law. देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो डिसीजंस लेते हैं रिसोर्सेज से रिलेटेड, जो भी स्टेट से में जो रिसोर्सेज होते हैं उनसे रिलेटेड वो डिसीजंस लेते हैं. ओके, और वो डिस्कस करते हैं किस तरीके से इन पर बिल बनाए जाए. ओके, और विधानसभा में किस तरीके से इसे एज अ लॉ प्लेस किया जाए. ओके, मिनिस्टर ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन ऑफ नीड्स ऑफ द पीपल फ्रॉम द ऑफिसर्स इन्वॉल्व्ड इन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन. हर दिन एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिसर्स के थ्रू जो इन्वॉल्व की जाती हैं लोगों के नीड्स की इंफॉर्मेशन, उसको किस तरीके से कंसर्न किया जाए ये देखा जाता है. स्टेट गवर्नमेंट हैज़ bring about a higher rate of economic growth. Okay, state government ने क्या किया है, higher rate पे लेके गए हैं economic growth को. The government will decide the priority after keeping the urgent need in view. The government must try to promote social justice and to minimize inequality by creating more opportunities of employment. Employment की ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें opportunities create करनी चाहिए. Okay, the government tries to attract investors so that they may build factories in the backward regions. They are given some incentives for this purpose by the government, concessional land, reduction of taxes, etc. The main motive of the government is to bring about the development in all the areas of the state. Okay, देखिए काफ़ी सारी ऐसे एरियाज़ है, बैकवर्ड एरियाज़ है जिन्हें इन्वेस्टर्स को गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स पे दिया है. ओके, जिसके उन्हें रिडक्शन किए हैं टैक्सेस के, कंसेशन दी है लैंड पे, ताकि वो वहाँ पे फैक्ट्रीज या फिर इंडस्ट्रीज बना सके और उस एरिया की डेवलपमेंट हो सके. ओके, सम ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एज मेंशन्ड इन द कंस्ट्रक्टिव ऑफ इंडिया पार्ट 4 आर एज अंडर. To have fair distribution of wealth and material resources among all classes, to ensure equal pay for equal work for men as well as women, to make provisions of free and compulsory education to all, to improve public health, to raise the level of nutrition and standards of living, to promote agriculture and animal husbandry, to secure the right to vote, work, education and public assistance in the unemployed, aged and disabled, to provide maternity relief to working women, to protect monuments and historical national importance, to safeguard and promote the interests economic and educational of the scheduled caste and scheduled tribes, to promote international peace and security. देखिए क्या क्या उन्हें करना चाहिए. देखिए फेयर डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ और मटेरियल का. ओके, और इक्वल पे करना चाहिए इक्वल वर्क के लिए. ओके, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना है, लेवल इंक्रीज करना है न्यूट्रिशन का लिविंग के लिए. ओके, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री को भी प्रमोट करना है, वर्क, एजुकेशन
ये सारी चीज़ों को भी आगे लेके जाना है। ओके, प्रोवाइड करना है मैटरनिटी रिलीफ वर्किंग वुमेन के लिए, प्रोटेक्ट करना है मॉन्यूमेंट्स को जो हमारी हिस्ट्री में बनाई गई हैं और हमारे नेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेफ गार्ड और प्रमोट करना है इंटरेस्ट को, जैसे कि इकोनॉमिक और एजुकेशनल इंटरेस्ट जो होते हैं SC ST दोनों के लिए, प्रमोट करना है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को। हेल्थ मीन्स द एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज, बट हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट डिजीज़। देखिए, हेल्थ का मतलब होता है कि आपको कोई बीमारी ना हो, कहीं चोट ना लगे, लेकिन हेल्थ का मतलब ये ही नहीं होता कि सिर्फ डिजीज़ के बारे में ही हम बात करें। Clean drinking water and good sanitation, hygiene and a pollution-free and stress-free environment are factors of that contribute towards the good health। देखिए, ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए गुड हेल्थ के लिए, जैसे कि सैनिटेशन है, हाइजीन है, पोल्यूशन फ्री, स्ट्रेस फ्री लाइफ है, एनवायरनमेंट है। ओके, Our constitution advises that every state should raise the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties. Healthcare in India is responsibility of every state. Healthcare services are provided the private institution as well। देखिए, हेल्थ केयर इंडिया में हर एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें देख के चलना पड़ता है। हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के थ्रू भी। ओके, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज, public health expenditures are jointly shared by the central and state governments. The state government who takes the assistance of NGOs is implement various public healthcare programs। NGOs ने भी बहुत सारे healthcare programs लेके आए हैं, introduce कराए हैं। Okay, the Ministry of Health and Family Welfare sets goals and plans the policies of the states to provide health and services and health education। The state government runs healthcare centers, dispensaries and hospitals in the rural and urban areas free of cost at very low rates। काफ़ी लो रेट्स पे जो स्टेट गवर्नमेंट हैं उन्होंने हेल्थ केयर सेंटर्स खुलवाए हैं, जैसे कि डिस्पेंसरीज हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, रूरल और अर्बन एरियाज में। ओके, ईच स्टेट इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज ऑफ द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM to improve the availability of good quality healthcare for people, especially those residing in rural areas, the poor, women and children। Their goals are reduction in infant and maternal mortality rate, prevention and control of communicable and non-communicable diseases, and promotion of healthy lifestyles। ओके, देखिए, NRHM जो है हर स्टेट ने उसे इम्प्लीमेंट किया हुआ है ताकि उनकी जो क्वालिटी है हेल्थ केयर की वो इम्प्रूव हो सके। ओके, पुअर लोगों को और वुमेन को, चिल्ड्रन को, हर किसी को बेस्ट फैसिलिटीज़ मिल सके। ओके, टू अटेन these goals, the state government trains health workers and prepares health plans for every village। The state government also ensures adequate and regular supply of essential medicines and equipment। देखिए, state government ensure करता है कि regular supply और essential medicines जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं और इक्विपमेंट है उसकी रेगुलर सप्लाई हो सके। ठीक है, हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया आर लाइक लिंक्स इन अ चेन at the primary or village level। There are primary and community health centers for the villages। There are qualified doctors and nurses equipped to treat minor illness। Seriously ill patients are sent to the district hospitals। Okay, तो जितने भी villages में hospitals हैं वहाँ पे इतने पढ़े लिखे, इतने qualified doctors और nurses रखे गए हैं जिनको minor illness cure करनी आती हो। Okay, अगर serious patient है, serious illness है तो उन्हें district hospitals तक पहुँचाया जाता है। All the districts have hospitals which are medically equipped and have trained medical personnel। These hospitals supervise the village health and centers and cater to the village and the urban population of the district। Medical college hospitals and specialized hospitals are located in the urban areas। देखिए, जो medical college hospitals है और specialized hospitals है वो urban areas में बनाए गए हैं, located किए गए हैं। They have मॉडर्न फैसिलिटीज़ फॉर इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। इन सारी चीज़ों के लिए उनके पास मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं। पब्लिक हेल्थ एट विलेज लेवल, एट द विलेज लेवल देयर आर विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन समितीज़ कंसिस्टिंग ऑफ पंचायत मेंबर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, टीचर्स एंड कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर्स। विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन समितीज़ आर सेट अप वेयर द पॉपुलेशन स्ट्रेंथ इज 1215 to 1500। Every samiti gets a grant of rupees 10,000 per year for the carrying out household surveys, preparing village health plans, organizing health camps, sanitation drives,
chlorination of drinking water sources, and regular cleaning of internal painting and reserves. देखिए, विलेज लेवल पे जो विलेज की हेल्थ है और सैनिटेशन समितिज़ है वो खोली गई हैं, ओके। वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा पंचायत मेंबर्स हैं, आंगनवाड़ीज़ है, वर्कर्स है, टीचर्स है, कम्युनिटी ऑफ हेल्थ वॉलंटियर्स है, ओके। विलेज की हेल्थ और सैनिटेशन में समिति सेटअप की गई है पॉपुलेशन पे, और जो पॉपुलेशन है उनकी 1250 से लेके 1500 तक की है, ओके। हर समिति को हर साल 10,000 रुपीज़ ईयरली मिलते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। Drawbacks. The public healthcare services have the following drawbacks in spite all the efforts made by the government due to the various reasons. क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं, उसके बाद भी कई सारे ड्रॉबैक्स आते हैं। उसके रीजंस क्या क्या होते हैं? Funds provided by the authorities are very less and do not reach at time and thus remain unutilized. जो फंड्स प्रोवाइड किए गए हैं वो या तो कम होता है या फिर टाइम पे नहीं पहुंच पाता है, इसलिए वो यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है, ओके। ह्यूज शॉर्टेज ऑफ ट्रेन्ड, स्किल्ड एंड डेडिकेटेड डॉक्टर्स एंड नर्सिंग स्टाफ इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में ट्रेंड और डेडिकेटेड डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ नहीं अवेलेबल होता है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, इनएडिक्वेट नंबर ऑफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, पुअरली मेंटेन्ड इक्विपमेंट्स इन PHCs इन विलेजेस, ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से नहीं होता है, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छे से नहीं होती हैं, और पुअरली मेंटेन्ड इक्विपमेंट्स होती हैं। लेट्स डू इट। कंसिडरिंग द हाई कॉस्ट इन्वॉल्व्ड द in medical education and setting up practice, do you think the doctors are justified in preparing and settle down in cities and migrate to foreign countries? ये आप खुद से करेंगे, okay? Private healthcare services. Private healthcare services have increased tremendously in the past few years. 75% of the healthcare in now provided by the private hospitals and doctors. These are super specialty hospitals and private clinics and doctors. The private hospitals are modern, clean and attract the middle class as well as the rich. Most government hospitals are not very clean and disorganized, so people prefer going to the private hospitals. However, private healthcare facilities are mostly found in cities. These are expensive and hence the common man cannot afford it. Only if there is a public-private partnership (PPP), we may be able to realize the dream of providing quality healthcare to all. Apart from healthcare, the government is involved in other field of public welfare as well. Okay, देखिए, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं कमियां आती हैं, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे देखा जाए तो उनको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कराया गया है, हर एक चीज़ की फैसिलिटी वहाँ पे होती हैं। अगर उनमें फैसिलिटीज़ हैं तो उस हिसाब से वो एक्सपेंसिव भी होते हैं, और एक्सपेंसिव होते हैं इसीलिए हर कोई उन्हें इतने एक्सपेंसिव होते हैं कि उन्हें कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थिंकिंग शॉर्ट। Which Indian state have been more successful in implementing various public welfare schemes? ये आप खुद से करेंगे, okay? Education. Education for every Indian citizen is one of the priorities of the government. Article 21A of the Indian Constitution has made a provision for free and compulsory education for the children up to the age of 14 years. As education plays an important role in improving the socio-economic conditions of the people, governments have made provisions and स्कीम्स सो दैट एवरीबडी इज़ एबल टू गेट एजुकेटेड। देखिए 14 ईयर्स की एज तक गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है सबको पढ़ाने के लिए, तो उस टाइप से उन्होंने अरेंजमेंट्स भी की हुई हैं, क्योंकि आर्टिकल 21A के हिसाब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न है कि लोग उन्हें फ्री एजुकेशन देनी ही देनी है, ओके। नाउ स्टेट गवर्नमेंट्स हैव ओपनड द प्राइमरी स्कूल्स, सेकेंडरी स्कूल्स, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर लर्निंग एट डिफरेंट लेवल्स, विलेजेस, टाउन्स, सिटीज़ एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। देखिए स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्होंने प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स ओपन किए हैं, कॉलेज इंस्टीट्यूट्स ओपन किए हैं, ओके, विलेजेस में, टाउन्स में, सिटीज़ में और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी। सर्व शिक्षा अभियान SSA। Sarv Shiksha Abhiyan is an Indian government program aimed by the universalization of the elementary education in a time-bound manner and mandated by the 86th Amendment to the Constitution of India, making free the compulsory of the children between the age of 6 and 14 years. It is operational since 2000 to 2001. ओके, सर्व शिक्षा अभियान जो है ये एक इंडियन गवर्नमेंट प्रोग्राम है
जो कि इसीलिए बनाया गया है एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, ओके। और 2000 से लेकर 2001 में ये ऑपरेशनल था। 6 to 14 ईयर्स के बच्चे इसमें आते हैं, ओके, जो पढ़ाई करते हैं। Now, to achieve the target, state governments are opening schools in the places which do not have schools. Also, existing schools are being strengthened through additional classrooms, toilets, and teacher training programs. Life skills, girls education, computer education, and education for the children with special needs are the other components of SSA. देखिए, टारगेट अचीव करना है स्टेट गवर्नमेंट को कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स उन्होंने ओपन करने हैं, ओके, ताकि एजुकेशन बच्चों को मिल सके, स्पेशली गर्ल्स को, ओके। SSA के थ्रू इन्होंने स्पेशल नीड्स जो हैं वो प्रोवाइड कराई हैं बच्चों को, ओके। डिड यू नो मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल आंगनवाड़ी सेंटर्स आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में फंक्शनल आंगनवाड़ी सबसे ज़्यादा लोकेटेड है। द स्कीम हैज़ फॉलोइंग की फीचर्स। कौन कौन से की फीचर्स होते हैं? प्रोग्राम्स विद अ क्लियर टाइम फ्रेम फॉर यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, रिस्पॉन्डिंग टू द डिमांड फॉर क्वालिटी बेसिक एजुकेशन ऑल ओवर द कंट्री, एंड अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोटिंग सोशल जस्टिस थ्रू बेसिक एजुकेशन, एंड एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल विल फॉर यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन अक्रॉस द कंट्री। देखिए, प्रोग्राम्स क्लियर टाइम फ्रेम के थ्रू कि यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन लेके आनी है, ओके। रिस्पॉन्डिंग टू द डिमांड, की डिमांड आई है क्वालिटी बेसिक एजुकेशन के लिए, क्या क्या चाहिए वो सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। अपॉर्चुनिटी प्रमोट करना है सोशल जस्टिस को बेसिक एजुकेशन के थ्रू, और एक्सप्रेशन है पॉलिटिकल विल का इसी एलिमेंट्री एजुकेशन के थ्रू अक्रॉस द कंट्री ये लेकर आनी है, ओके। अ पार्टनरशिप बिटवीन द सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, इन तीनों के बीच में एक पार्टनरशिप होनी चाहिए। एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टेट्स टू डेवलप देयर ओन विजन ऑफ एलिमेंट्री स्कूल, स्टेट में खुद का विजन होना चाहिए कि खुद का एलिमेंट्री स्कूल भी होना चाहिए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम्स आर एज फॉलोज, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? To provide useful and elementary education for the children in the age of 6 to 14 age group. The bridge social, regional and gender gaps with the active participation of the community in the management of schools. To allow children to learn about the masters, their natural environment in order to develop their potential. To inculcate value-based learning that allows children an opportunity to work for each other's well-being. To realize the importance of early childhood care and education and look at the 0 to 14 age as a continuum progressing continuously. देखिए, क्या प्रोवाइड कराना है? यूजफुल और एलिमेंट्री एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के एज ग्रुप को, ठीक है। सोशल, रीजनल और जेंडर गैप्स जो हैं उसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए स्कूल्स में। चिल्ड्रंस को अलाउ करना चाहिए, एनवायरनमेंट के थ्रू बताना चाहिए पोटेंशियल क्या क्या होती है, किस तरीके से उनमें डेवलपमेंट लेके आनी है, सारी चीज़ें उनके अंदर इनकलकेट करनी है वैल्यूज़, ओके। और चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन 0 to 14 एज की जो एज ग्रुप है वो कंटिन्यूसली उसमें होनी चाहिए, ओके। आगे बढ़ते हैं। राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। The Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 came into force on 1st April 2010. By this act, every child in the age group of 6 to 14 years will be provided free elementary education in the suitable classroom in his/her neighborhood. The government will bear all costs during this period so that every child could complete 8 years of schooling. देखिए, 2009 में ये एक्ट आया था, ठीक है, कंपलसरी फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का, जो कि इन फोर्स में आया 1 अप्रैल 2010 में। इसके थ्रू ये बोला जाता है जितने भी बच्चे हैं सबको एजुकेशन देना अनिवार्य है, लेना अनिवार्य है, ओके। और इसके जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे गवर्नमेंट उठाएगी। द एक्सपेंडिचर ऑन एलिमेंटेशन ऑफ एक्ट is shared by center and state governments in the ratio of 65:35, while it is 90:10 for northeastern states. Children with special education needs shall also be admitted in regular schools. Thus, right to education is a fundamental right. Now, देखिए इसका रेशियो बताया गया है, ओके। यहाँ पे जो स्टेट्स हैं 65:35 का रेशियो है इसका, और 90:10 का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है, ओके। आगे बढ़ते हैं।
The rule of the RTE, Right to Education Act, was amended in February 2017 to include subject-wise learning outcomes till class 8, thereby emphasizing the importance of quality education. Okay, ये Right to Education का Act जो है वो February 2017 में include किया गया था subject-wise. Okay, water management. The state government builds and maintains water treatment plants and supply system to distribute clean drinking water to the people. In case of a water crisis, it supplies water through tankers. देखिए स्टेट गवर्नमेंट जो है ये मेंटेन करती है किस तरीके से प्रॉपर प्लांट्स को सप्लाई वाटर ट्रीटमेंट देना चाहिए, ओके, और डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. ओके, अगर वाटर क्राइसिस होते हैं तो उन्हें टैंकर्स के थ्रू प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करना है. ओके, आगे बढ़ते हैं. Then comes providing an adequate water supply to industries and constructing proper sewage system of wastewater management. The Public Health Engineering Department of each state undertakes this task while the local government bodies maintain the system. Okay, देखिए प्रोवाइड कर रहे हैं एडिक्वेट वाटर इंडस्ट्रीज में. ओके, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है हर स्टेट का वो इस टास्क को अंडरटेक करता है. ओके, आगे बढ़ते हैं. To provide water for irrigation, the state government builds dams, wells, canals, reservoirs, etc. and the local self-government maintains them. Okay, जो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए ये क्या कहाँ पानी जो है प्रोवाइड कर रहे हैं इरिगेशन के लिए. ओके, डैम्स, वेल्स, कैनल्स, रिजर्वर्स में से. The state government also encourages farmers to form associations for building and maintaining small irrigation work. फार्मर्स को भी encourage किया जाता है छोटा छोटा इरिगेशन वर्क खोलने के लिए. In arid drought-prone regions, the state government frames policies to manage the available water resources in the state. One good example of such water management scheme is Jalyagnam, implemented by the drought-prone areas of Andhra Pradesh. The scheme involves water conservation plans, construction of reservoirs, and provision of well-planned irrigation system like the lift irrigation system. देखिए यहाँ पे एक प्लान की बात हो रही है, स्कीम की बात हो रही है, जलयाग्रम. ओके, ये इम्प्लीमेंट कराया गया था ड्रॉट प्रोन एरियाज आंध्र प्रदेश में. ये स्कीम जो है ये इन्वॉल्व करती है वाटर कंजर्वेशन. ओके, वेयर अ रिवर फ्लोज थ्रू मोर देन वन स्टेट, द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट्स कंसर्न्ड एंटर इनटू अ फॉर्मल एग्रीमेंट टू शेयर द रिवर वाटर एंड इरिगेशन ऑन अदर पर्पसेस. देखिए जहाँ पे रिवर फ्लो करती है किसी भी एक स्टेट में, वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो कंसर्न्ड होती है कि जो शेयर है रिवर वाटर का वो इरिगेशन के थ्रू और आगे अलग पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जा सके. ओके, लैंड रिफॉर्म्स एंड हाउसिंग स्कीम्स. Land reforms are important for the development of the state. Almost all state governments in India have passed various land reforms laws. देखिए लैंड रिफॉर्म्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं एक स्टेट के डेवलपमेंट के लिए. जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने ये रिफॉर्म जो लॉ है इसको पास किया है. ओके, आगे बढ़ते हैं. लैंड रिफॉर्म्स इंक्लूड रीडिस्ट्रीब्यूटिंग लैंड अमंग पीपल एंड स्कीम्स फॉर यूटिलाइजिंग and wastelands for cultivation, building of roads and other infrastructures. Sometimes lands is used acquired for establishing industries. देखिए लैंड्स का किस चीज़ में यूज़ किया जाता है. ओके, यूटिलाइजिंग ऑफ वेस्ट लैंड्स, कल्टिवेशन के लिए, बिल्डिंग ऑफ रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए. ओके, द सक्सेसफुल लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम इन आवर कंट्री वॉज द ऑपरेशन बरगा, implemented by West Bengal in 1978. The program resulted in more equitable distribution of land among landless farmers. जो landless farmers थे उनमें वो equally बट गई थी. ओके, 1978 की ये बात है. Now, did you know Operation Barga in West Bengal? Operation Barga was launched in 1978 with the objective of achieving the registration of sharecroppers and providing them permanent occupancy and heritage rights and crop division of 1:3 between landowner and sharecropper. देखिए ऑपरेशन बरगा जो था इसका ये मोटिव था, जो जिन फार्मर्स के पास लैंड नहीं थी उनको कहीं ना कहीं लैंड देके एक ऑक्यूपेशन भी मिल जानी थी, तो उनका यही मोटिव था एक. ओके, बरगा रिफर्स टू अ पीस ऑफ लैंड दैट गेट्स कल्टिवेटेड नॉट बाय द ओनर बट समवन एल्स ऑन अ कंडीशन दैट शेयर ऑफ द produce must be given to the owner. A man cultivating the land is called the बरगादार. एक आदमी जो कि लैंड पे कल्टिवेट कर रहा है उसको बरगादार बोला गया था. ओके, टू ब्रीफ अ डिस्क्रिप्शन मेंशन ऑफ हाउसिंग स्कीम्स अंडर स्टेट गवर्नमेंट्स.
Chapter recall. Resources planning and resource allocation is a major function of all the state governments. It is the responsibility of the state government to look after the public health. Each state implements the National Rural Health Mission (NRHM) to improve the availability and access to good quality healthcare by people. However, public healthcare services are not adequate to cover all the citizens of the country. Private healthcare services have increased tremendously in the past few years. Okay, देखिए चैप्टर को रिकॉल कर रहे हैं यहाँ पे. रिसोर्स प्लानिंग और रिसोर्स एलोकेशन ये दो मेजर फंक्शंस होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के. ओके, और स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी पब्लिक हेल्थ की ध्यान रखे. ओके, हर स्टेट इम्प्लीमेंट करता है NRHM अपनी पब्लिक पर. ओके, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज जो होती हैं वो कंट्री के जो सिटीजन्स पे हैं उन पे इम्प्लीमेंट की जाती हैं. ओके, नाउ प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज जो होती हैं वो इंक्रीज हुई हैं पिछले साल से लेके हर साल इंक्रीज होती हैं. ओके, एक्सरसाइजेस. Tick the correct answer. Directive principles of state policy are guidelines given in the central and state governments to bring about fair and just society. Okay? बाकी के टिक मार्क्स आप खुद से करेंगे. आगे चलते हैं. Fill in the blanks. The primary function of any government is to make an efficient use of the available resources. Okay? बाकी आप खुद से करेंगे. What do you mean by health? ओके, हेल्थ का हमने पढ़ा था. हेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि आपकी गुड हेल्थ होनी चाहिए या फिर इंजरीज नहीं होनी चाहिए, डिजीजेस नहीं होनी चाहिए. हेल्थ का ये भी मतलब होता है कि सैनिटेशन अच्छी होनी चाहिए, हाइजीन होनी चाहिए. ओके, ये सारी चीज़ें भी हेल्थ में होनी चाहिए. डिस्कस द वर्क डन बाय द विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन समितिस इन रूरल एरियाज. ओके, इसका आंसर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल. डिस्कस द वर्क डन बाय द विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन समितिस इन रूरल एरियाज. ओके, इनमें क्या वर्क डन किया गया है विलेज हेल्थ और सैनिटेशन के लिए समितिस के द्वारा. ओके, तो यहाँ पे इन्होंने ऑर्गेनाइज कराए हैं हेल्थ कैंप, सैनिटेशन ड्राइव्स. ओके, और हेल्थ प्लान्स बनाए हैं. तो ये सारे काम इन्होंने करे हैं. ओके, बाय द हेल्प ऑफ इन आंगनवाड़ीज, उसमें हेल्प ली गई है टीचर्स की और काफ़ी सारे लोगों की. ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे. लेट्स कम टू दी आउट ऑफ द बॉक्स. NGOs आर प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज. हाउ? एजुकेशन इज प्लेस्ड इन द concurrent list. Why? India has the world's largest number of medical colleges, yet our rural population has very little access to the healthcare facilities. Why? Education is placed in the concurrent list. Why? India has the world's largest number of the medical colleges, yet our rural population has very little access to the healthcare facilities. Why? Okay.